तो बस चल बढ़िया। देख लिया आपने? बताइए। Not scanned, that's what जी बताइए। also prepared एक technology of savings. जी जी। जो 3 सवाल कल थे वो उनका उत्तर सब पहले ही 3 का लास्ट है। आप बस उतना ही बता दीजिए, पढ़िएगा। जी बताइए। कहाँ है AR1? AR1 इज पेज नंबर। AR1 चाहिए। किस डेट का है AR1? 12/8 में लिखी थी। है 12/8 से जी। कहाँ है इसकी तामीर? ये असम तामीर है। पीछे क्या लिखा है इस पे पीछे? लिखा है ग्राम प्रक्रिया में सपना में है अदम तामीर वापस। हाँ तो फिर ये इस नोटिस का क्या मतलब हुआ? This notice will not give you any. Be very honestly placed whatever is. हाँ तो अब honestly बता दीजिए why you want to prolong? But we do not want. 13 के अधिनियम के अनुसार आप इनका भुगतान कर दीजिए। सर इसमें क्या है सर? They were actually not suppressed. नहीं हम तो सिर्फ आपसे ये जो AR1 है इसका नोटिस जब जारी किया गया भूअर्जन अधिकारी द्वारा, ठीक है, इसमें भी एम्बिग्विटी है, ठीक है। नोटिस में ऊपर कोई तारीख नहीं डालने का कष्ट किया गया है। साइन करने से तारीख तो ऊपर भी पड़ती है ना। डिस्पैच नंबर पड़ता है 67 डाल दिया है। खाता क्रमांक के ऊपर नंबर, डिस्पैच नंबर कहाँ है इसका? 67 नंबर है। 67 खाता नंबर है। सारे लोग को गए सर सेम नोटिस। अरे फिर उसका नोटिस डिस्पैच रजिस्टर कहाँ है? ओरिजिनल रिकॉर्ड भी अब दिखाइए ना, ओरिजिनल रिकॉर्ड से दिखाइए, डिस्पैच नंबर दिखाइए। डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाए होंगे ना ये नोटिसेस। सुबह तक बैठ के भी नहीं आप वेरी लेंदी तो भी ठीक है। पंद्रह से पेंडिंग है ना, 9 साल हो गए, काफी लेंदी हो गया। दिखाइए डिस्पैच रजिस्टर। ये क्या है? डिस्पैच रजिस्टर तोड़ना है। डिस्पैच रजिस्टर बोल रहा हूं मैं आपसे। मैडम, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्पैच रजिस्टर? जब शासन से कोई भी करस्पॉन्डेंस जारी होगी तो वो एक डिस्पैच रजिस्टर में चढ़ाई जाएगी, उसके बाद में वो भेजा जाएगा। कहाँ है वो डिस्पैच रजिस्टर? दिस इज नॉट, यू आर ट्राइंग टू मिसलीड द कोर्ट। दिस इज नॉट डिस्पैच रजिस्टर। इसमें लिखा है ग्राम पडरा, फॉर्म 18 क एवं ख, तहसील हुजूर, डिस्ट्रिक्ट रीवा।
दिस इज नॉट डिस्ट एंड आप भी एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब बिना समझे हुए कागज आगे बढ़ा रहे हैं. Where is the dispatch register? Your Lordship may give us time. No, I'll not grant you any. It's not, Lordship, with great respect, but they've tried to find out the entire night they were in the office. They are not obliging the court. One, they have been acting as an oppressor towards the citizen. That's Yes. absolutely incorrect. That is not absolutely. Merely you are saying in English that it is absolutely incorrect will not make it incorrect. Since 2015, this matter is pending. Land acquisition proceedings took place 15 years prior to that. Now the issue is very simple. Show me from the record you admit that this is not a service. AR1 does not amount to service of notice on the beneficiary. You admit this fact. Then after that, As to whether they have knowledge of this fact. No. I am trying to ascertain that if this notice was served on them or not, because your contention is that they did not come forth to accept the compensation. I asked you, second issue, that if any check was prepared in favor of the beneficiary. No check was prepared. No check was prepared. Yes. What has happened, Lord? We filed a chronology. Your Lordship may just kindly appreciate. हाँ, please बताइए. Look, I'll just refer to the chronological events. जी, कहाँ लिखे हैं वो? किस पेज पर लिखना है? हाँ. Lord, they purchased the land in 1986. Yes. Thereafter, Section 4 का notice हुआ. जी, 91 में. जी. 19 और 2991 को 93 का we acquired किया land. हाँ. Now, what has happened, Lord? जी. The petitioner appeared on 15/10/91. Yes. आप देखें, we filed this as AR5 on page 38. Page 38. Yes. They appear before the land acquisition office. जी. And they filed their reply along with their वकालत. ठीक है. ठीक है. So this shows that they have every knowledge of this fact. उसका award की knowledge क्या है? क्या was award passed in open court? उसके बाद award pass हुआ 7/6/93 को the final award. जी. Now on 12/6/93, just after 5 days, जी. a miscellaneous petition is filed जी. before this honorable court, challenging the acquisition proceedings and the award. जी. उसमें what they do, Lord, thereafter in the chronology this notice is there. जी. उसके बाद in that petition on 19/8/93 this honorable court is pleased to grant the stay order. Yes. उसके बाद on 2/9/93 स्टे ऑर्डर किया था not to dispossess. not to dispose. अवार्ड स्टे नहीं किया था. जी. Now 2/9/93 is the petitioner, Lord, files an application for amendment जी. along with all other similar petitioners. Yes. Now this is registered as IS 7280 of 93 जी. and this is filed in NT 2559 of 93. Right. Now this makes it clear not that they have every knowledge of this fact and they have the knowledge of the award also. जी. So this is now the prayer in this petition MP जी. is exactly same as the prayer which they have filed in this petition. Okay. Now they did not disclose this fact before this honorable court, Lord, that on 25/6/2022, जी. 2002, the MP has already been dismissed by you. Okay. This fact is not disclosed. This fact is not disclosed in the para 2 of the petition, Lord, where they are. Anywhere in the petition or in para 2 of the petition? कहीं भी नहीं किया, Lord. Para 2 में तो परफॉर्मा ही है. इन्होंने बताया नहीं. अच्छा, चलिए ठीक है फिर. और ये बोलते हैं कि हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमको कोई नोटिस नहीं है. ठीक है. नहीं आप इशू ये है, प्रोविजन क्या कहता है? आपने 2002 में तहसीलदार ने पोजीशन दे दिया कि पिटीशन खारिज होने के बाद. Great respect, Lord. We go down to all the observations that are made by Lordship. We have been incorrect. We admit all these things, Lord, that perhaps notice was not properly issued. Notice issue भी हुआ तो इनको तामील नहीं हो. But so far as the knowledge is concerned, Lord, they have every knowledge. नहीं knowledge उसके बाद दीजिए 2013 का एप्लीकेशन दीजिए. उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है? सेक्शन 12 Lordship 1894 का. 1894 भी दीजिए और नया एक्ट भी दीजिएगा.
Award of collector when to be final. Well, 2 में जी, the Act of 1894, yes, as your lordship observed, जी, section 12(2) में the जी, collector shall give immediate notice of the award to such of the persons interested as are not present personally or by the representatives when the award is given. अब नोटिस इशू हुआ है, लेकिन काबिल नहीं हुआ। काबिल नहीं हुआ, जी, बट द नॉलेज इज देयर। ठीक है, चलिए उसके बाद उसके बाद अब 2013 का एक्ट क्या कहता है? उसके बाद सर क्या हुआ है कि आई जस्ट अप्राइज द लॉर्डशिप नाउ द रिप्लाई ऑफ द thereafter on 38/2022 lord जी, the tehsildar by the annexure R1 which is in reply of the housing board lord जी, has given the possession of the entire land to the MP housing. जी, And in around 23/2008, the land is mutated in the name of the MP housing. जी, Now, when the impugned notices are issued, which are under challenge in this petition, annexure P7 on page 54, Lord, the MP housing board issued the notices to the petitioner for vacating the land. जी, Now, your lordship may kindly see what this notice says. जी, This is annexure P7 on 54. पिटिशन के साथ, जी, P7 of the petition, जी, page 54. जी, ये लिखता है विषय, your lordship है, जी, मंडल की भूमि पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण की शीघ्र हटाने वाला। जी, उपरोक्त विचारांतर लेख है कि आपके द्वारा मंडल की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि मंडल के नाम नामांतरित हो चुकी है। दिनांक 14/5/15 के पूर्व किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा लेवे, अन्यथा दिनांक 14/5/15 को मंडल द्वारा उस भूमि बलपूर्वक रिक्त कराई जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जी, Now, your lordship may kindly see what जी, जो नोटिस है इसी के साथ एक लिस्ट लगा है। एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। जी, इस नोटिस का क्या लिस्ट लगाई है? कि जो हाउसिंग बोर्ड का रिप्लाई है मैडम, annexure R1 of the housing board's reply, दैट इज आईए नंबर, this is 10428 of 50 10428 20 सीरियल नंबर 20। यस, हाँ, return. हाँ, इसका R1 है मतलब पेज 9 पे। हाँ, ठीक है, क्या लिखा उसमें? ये है विशेष न्यायालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुभागीय तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट रीवा द्वारा ग्राम पडरा स्थित खसरा नंबर सूची संलग्न की भूमि कुल रकबा 18.10 हेक्टेयर का अवार्ड पारित किया जाकर भूमि का आधिपत्य सहायक यंत्री MP हाउसिंग बोर्ड को आज दिनांक 30/8/2002 को सौंपा। जी, इसके साथ मतलब एक लिस्ट अटैच है जी, जिसमें पूर्व भूमि स्वामी और प्रेजेंट भूमि स्वामी के नाम दिए हुए। जी, अब एंट्री नंबर 94 pertains to the जी, 94, यस, 94 किस पेज पर है? पेज 13 पर ऊपर नीचे स्कैन होने पे। जी, जी, यस, ये 93 पे खसरा 493 राजेश कुमार जी, son of Raj. And इसके on page 16 there is another list. जी, ये लिस्ट कहती है पडरा रीवा स्थित अर्जित भूमियों की सूची जिन पर मकान बने हैं। जी, इस सूची में 493 नहीं है।
ये सूची किस तारीख को प्रिपेयर की गई है? ये सर इसकी तारीख कहाँ है और क्या पंचनामा बना है क्या? सर ये तो सूची हाउसिंग बोर्ड की है। हाउसिंग बोर्ड में राइट एनीथिंग, पंचनामा बना क्या? पब्लिक ऑफिशियल्स के सामने और बेनिफिशियरीज के सामने पंचनामा बना कि किस जमीन पे क्या स्थिति है, क्या पेड़ लगे हैं, कितने कुएं हैं, कितने मकान हैं। आप अपने ऑफिस में बैठ के कोई भी कागज बना लें, उसका क्या मतलब है? Either this should be in the form of a panchnama where some of the officials of the district administration, some of the officials of the housing board, and notice should have been given to the beneficiaries whose land has been acquired to point out that there is no construction existing on the said property which has been handed over. इसको ऑफिस में बैठ के बनाने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। इन्होंने जो अपने पिटिशन में लगाए रिसीप्ट ये टैक्स भरते रहे, वो रिसीप्ट 2013 का है। अगर ये पहले से भरते होते तो ये बताते कि नहीं वो में कंस्ट्रक्शन वो तो बात की बात है। पहले तो ये बता दीजिए इस दस्तावेज की सैंक्टिटी क्या है? आपके बैठ के कार्यालय में, हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री बैठ के कोई कागज बना लें? सर ऐसा है नहीं, तहसीलदार ने कहा है तहसीलदार के साइन बताइए ना, और कब नोटिस कहाँ है इसका? सर ये ऑर्डर ही आप देख ले, जो R1 है पेज 9 पे। हाँ, दिस इज क्या कहता है R1? तहसीलदार का ये है, क्या कहता है? भूमि का अधिवक्ता प्रमाण पत्र। इसमें ये लिखा है कि न्यायालय भू अर्जन अधिकारी एवं अनुभागीय अधिकारी तहसील हजूर जिला रीवा ग्राम सोयनसो स्थित खसरा नंबर सोयनसो की भूमि जिसका कुल रकबा 18.1 हेक्टेयर का अवार्ड पारित किया जाकर भूमि का आधिपत्य सहायक यंत्री MP हाउसिंग बोर्ड उपसंभाग क्रमांक 2 रीवा को आज दिनांक 30/8/2002 को सौंपा गया। इसमें कहाँ संलग्न कहाँ लिखा है? जो दस्तावेज नीचे लिखे उनका संलग्न के बारे में कहाँ लिखा है? सूची अनुसार कहाँ लिखा है संलग्न सूची? सेकंड लाइन संलग्न सूची अनुसार जी। तो ये सूची है सर, इसमें इनके अकेले का नहीं है सर, सारे लोग। ये मकान का तो डिस्प्यूट छोड़ दीजिए, इशू ये है कि 24/2 में जब आपने मुआवजा नहीं दिया तो उसके क्या प्रभाव होगा? 2013 का जो एक्ट है उसका सेक्शन 24(2) क्या कहता है? सर इनका चलिए मकान को भी भूल जाइए 2 मिनट के। ये कहते हैं कि यू आर नॉट पार्टी टू एनी प्रोसीजर, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। पूरा अवार्ड इनके, पूरे अवार्ड में इनके नॉलेज में है, ये हाई कोर्ट भी जाते हैं। मेरी प्लेयर तो 24/2 की है लॉर्डशिप। लैंड एक्वायर की गई थी 1900 प्रेयर पढ़िए ना इनकी, 24/2 की प्रेयर है जी। वी विल रिस्ट्रिक्ट टू दैट ओनली। This was already decided. They came to this honorable court, suppressed such an important fact. अगर ये हो सकता है पहले बताते तो ये petition भी admitted now, because sir the fact remains that all these things have been along with the additional reply now, Lord, we have filed a list of all those people who came thereafter. 2007 में majority लोगों ने आकर के अपना पैसा लिया। वो इनको पैसा भेजने में क्या तकलीफ थी? कोई तकलीफ नहीं है। ये एक बार मान, अगर हम मिस हो गए, अगर इनका इंटेंशन है तो ये एक बार लिखते हम पैसा। हम आपका आर्गुमेंट लिख लेंगे कि अगर आप मिस हो गए तो इनको मिस नहीं करना चाहिए था। Your Lordship may kindly see their contract note. And there is nothing that we have no intention to pay that up. चलिए, now see the order. With great respect. Now see the order. This petition is filed on the ground that certain land acquisition proceedings were initiated in the year 1991 when notice for acquiring land under Section 4 of the Land Acquisition Act of 1894 was issued. Full stop. Petitioner's contention is that though land was acquired, compensation was paid, and therefore in terms of the provisions contained in section 24 within bracket 2 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the proceedings stand lapsed, and therefore there are only two options to the state, either to initiate fresh। तो दिया वकील साहब, ऑर्डर समझने की कोशिश किया करिए आप लोग। ऑब्लाइजर्स क्या है
परपीचुअल डिससेटिस्फेक्शन आपका एक जो है हॉलमार्क है वकीलों का। आपको सिर्फ मान के चलते हैं कि कोर्ट आपका एडवर्सरियल है और जो है वो जो करेगा वो गलत करेगा। नो लॉर्डशिप, ठीक है ना, जाइए ऑब्लाइज, चुनौती दीजिएगा इस आदेश को। नो लॉर्डशिप। हाँ, साहब का नाम डाल दीजिए।